Friends, here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi IAS Academy, Mumbai Thane. And today on 19th June 2022, we are starting our foundation course for UPSC Civil Services Examination and MPSC State Services Examination also. This course will continue for next 8 days till 26th June 2022. And specifically, this course is organized on the eve of birth anniversary of Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj, which is scheduled on 26 June 2022. Sambodhi Career Academy, most of the students, those who are associated with Sambodhi Career Academy, they are knowing that we are an institution who is conducting courses for UPSC, MPSC, staff selections, banking, and so many competitive examinations. And we have produced 650 plus more officers in 16, 17 years. And many of the officers across India, senior most officers, they are associated with Sambodhi Career Academy. Our mission is to produce constitutional and ethical officers so that we can give justice to the people and we can participate in socio-educational economic transformation of this country. My student Jay Wagmare, who got selected in 2023-24 batch, so he gave me a reference of Swachhanda Chavan sir, who is an IRS officer and presently working in the narcotics department of Madhya Pradesh. And like we were on a dais at Nagpur also. I think in 2015 or 16, the program which was organized by a senior most and the former IS officer of Maharashtra, is it Khobragade sir. So that time we meet, and this is second time we are meeting on the Zoom platform. So without wasting time, I welcome Swachhanda Chavan sir, who is IRS officer. Just a few things with respect to his biodata, his introduction. He got selected in 2014 as IRS Customs and Excise, presently working as Assistant Narcotics Commissioner in Central Bureau of Narcotics, Madhya Pradesh unit. He completed his graduation in Engineering, Electronics Engineering from Nagpur in 2008. Then MBA in Power Management in 2011. Then MA in Public Administration in 2013. He got selected as a Assistant Commandant to Central Reserve Police Force, okay, in 2012 batch. Then there are so many achievements of him during his job tenure. So he received Director's Disc by IGCRPF. He received letter of appreciation by IGCRPF in 2014. And then he completed public policy course by Lee Kuan Yew University, Singapore, in 2016. Then successfully completed course on financial intelligence and investigation by IIM Bangalore in July 2017. Then there are so many things like certificate of appreciation by Commissioner IT Nagpur for his active role as Assistant Commissioner Airport Nagpur. Then completed anti-smuggling course organized by CBP and FBI, Government of USA in South Carolina, USA in 2018. And also completed weapons of mass destruction course by CIA, FBI, and Department of Justice, USA in 2019. Received Zonal Commendation Award for Meritorious Service by Chief Commissioner Nagpur Zone in July 2021. Okay, so there are other things also related to his participation in cricket, okay, sports. So a very young and dynamic personality in front of you on this occasion, okay, and I welcome him and also congratulate him for his great achievements during this small tenure of his like joining after Assistant Commissioner as a Customs, okay, means joining in civil services. So without wasting time, Swachhanda ji,
This is a platform of Sambodhi IAS Academy, and many of the students, they are aspiring to become civil servants in a near future. So many bureaucrats, they have delivered lectures on different topics earlier also. And in this pandemic period, we conducted so many lectures, like in pandemic period, more than 50 plus officers, they delivered sessions on different topics related to UPSC preparation, MPSC preparation. And on this day, this is special session organized for the students. Okay. So I will request you that you should continue further session, motivate our student, and there are questions also which I have forwarded to you. So one by one, students will ask you question. Before that, uh, it's my request that you should continue a few things, like you should discuss with them few things which are related to your own journey of competitive examination, and then rest of the things we shall cover through questions. Yeah, over to you. Thank you. Thank you, Mangesh ji. Thank you, Sambodhi IAS, for having me here today. Very good morning, all. And it's a very interesting journey when we all start studying for the civil service preparations. The dynamics are very different. As a student, we come in with a lot of aspirations. Then we start digging into the preparation syllabus, test papers, and all, and we start to evolve as a person. And evolving in the course of journey is very important because we tend to learn from our mistakes, we tend to improve, and that is the key to clearing this exam. This exam demands more than hard work and intelligence. It demands relentless pursuit and constant hard work. If one is saturated, willing to improve, then there is certainly a dead. So what I insist and what I constant working on your mistakes and solve a lot of test papers, be it MCQs for the prelims, be it the answer writing practice for the mains. Even for the interview preparation, one needs to practice presenting themselves and try and give a lot of mock practice in front of the mirror, try giving answers, and imagine things that may be asked with respect to your biodata, because most of the interviews, they revolve around your biodata only. I had a very good experience preparing. I learned a lot. I made very good I enjoyed the process, get involved in a better pursuit to move ahead. So it's a wonderful level playing field. It's a very wonderful career opportunity. I feel all of us should prepare for it. But having said that, there is another harsh reality that the exam is tough and the success rate is low. So we must always have a plan B. As Mangesh ji was going through my biodata, you must have realized that I was studying in due course of my preparation also. I was pursuing other fields of academics. And I was asked the same question by the honorable panel also during the interviews. And my answer was simple, that I was preparing to get absorbed in some other sector if at all. I don't say. So it is an element involved, and we appreciate it. We must prepare, and how we go in सतत नेहमी उपलब्ध असावा. समजा काही कारण असतं, कारण एक लक फॅक्टर पण इन्व्हॉल्व असतो. काही कारण असतं, जर आपण उत्तीर्ण होऊ शकलो नाही परीक्षेत, तर आपल्याजवळ एक दुसरं करिअर ऑपॉर्च्युनिटी रेडी असावं. आपलं स्किल सेट असं असावं की आपण कुठेही चांगलं ऍब्झॉर्ब होऊन जाऊ प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये, आणि वी कॅन स्टील कॉन्ट्रीब्युट टू नेशन बिल्डिंग. वी कॅन स्टील कॉन्ट्रीब्युट टू this wonderful country of ours. So this is pretty much the summary. There are a lot of struggles also. We must appreciate a lot of struggles. We must be prepared to move out of our comfort zone. घराबाहेर जाऊन छोट्या खोलीत राहून अभ्यासिकेत जाऊन ना आवडीचं जेवण असेल तरीही ते जेवण व्यवस्थित
करून अभ्यास करायचं, प्रश्न आपली व्यवस्थित आले पाहिजे, आपले कन्सेप्ट क्लिअर झाले पाहिजे, असं आपलं एक निश्चय असावं. निश्चय दृढ़ निश्चयच असावं. थोडस आपको थोड़ा गेंडा चमड़ी का व्यक्ति बनना पड़ेगा. ठीक है, काफी एनकरेजमेंट भी आएगा, डिस्करेजमेंट भी आएगा ऑन योर वे. It comes in different ways for boys. For boys, it is like you need to get settled. Girls in a way that एक particular age के बाद आपका marriage होना चाहिए and all, and still we need to evolve as a society. We need to have equal opportunities for boys and girls, and I think this career, this examination gives you that. म्हणजे येताना पण खाली more girls are encouraged, lady candidates are encouraged to apply. So the commission is very clear. So make the most of this opportunity. There are sacrifices. Be prepared for those sacrifices. The sacrifices, त्यांना sacrifices म्हणण्याऐवजी it's a part of your preparation only. काही functions ला आपल्याला skip करावं लागतं. बऱ्याचशा गोष्टी अशा असतात जिथे जायची तुमची इच्छा असेल पण तुम्हाला ते अवॉइड करावं लागेल कारण तुमचा अभ्यास कॉम्प्रोमाइज होतो. ठीक आहे. Words of confidence, self-decision ki you are the right person for the job. So it's all about self-belief, self-discipline आणि अथक प्रयास, हार्डवर्क करत राहायचं, इव्हॉल्व्ह होत राहायचं. त्यात चुका आपण जर रिपीट करत राहिलो तर वी आर नॉट प्रोग्रेसिव्ह. We should ensure that we don't make the same mistakes. Mistakes can be different. Different mistakes are appreciated, but don't repeat the mistakes. आणि प्रॅक्टिस करत राहा. मला वाटतं थोडासा एक पर्सनॅलिटी ऍस्पेक्ट त्या प्रिपरेशन मध्ये फार इम्पॉर्टंट असतो. वन शुड बी एबल टू ऍब्सॉर्ब फेलियर ऑल्सो. लाइफ इज नॉट ऑलवेज है ना बेड ऑफ रोजेस. बहुत सी चीजें ऐसी रहेगी जो आपको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी. हर बार आपको एज डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तर ते सगळं यू शुड बी एबल टू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली. टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है. कभी कभी आपके एग्जाम्स क्लियर होते होते जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक आप जाएंगे. यू विल हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड यू. और इंटरव्यू में जब आप वापस आ जाओगे, फाइनल लिस्ट में नहीं रहेंगे, तो आप रियलाइज करोगे कि आपके साथ के बंदे ऑटोमेटिकली कम हो गए. बॉटम लाइन इज कि चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं. ठीक है. तो ये भी हमको ध्यान में लेना है. यू शुड अंडरस्टैंड कि बट बैड टाइम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज बैड टाइम्स दे हेल्प यू आइडेंटिफाई पीपल. ठीक है. तो बट आपको आगे बढ़ते रहना. यू डोंट हैव टू स्टॉप. ये हमारे साथ भी हुआ था. हम लोग भी, मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की ये प्रक्रिया थोड़ा देर ऊपर नीचे होते रहे. एंड देन वी रियलाइज सर्टेन ट्रूथ अबाउट लाइफ that you need to always understand. जैसे गौतम बुद्धा भी बोलते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट. इम्परमानेंस, चेंज इज ओनली परमानेंट. ठीक है. आपको ये सब ध्यान में रखना है. ये फिलॉसॉफिकल एंगल में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन का भी हिस्सा आहे. ते तुमच्या प्रिपरेशनशी निगडित आहे. कारण कधीही तुमच्या टेस्टच्या स्कोर्सला तुम्ही परमनंटली सॅटिस्फाइंग स्कोर म्हणून घेऊ नका. ठीक है. आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. खराब स्कोर आता है तो भी उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. ठीक है. अंडरस्टँड की हा ठीक आहे, आज मैंने अच्छा. ठीक आहे. तो दॅट इज इट. मला वाटतं बरेच अजून लेयर्स आपल्या प्रिपरेशनचे पुढे येतील ऍज वी डिस्कस. So I think Mangesh ji, we can start with the questions one by one. Whatever queries our aspirants have, they can just shoot. Yes. So yeah. I appeal students, those who shared questions yesterday. Yeah, Rini, you can start. Like you can ask your question to Swachand sir. Rini Rosario. Yes, sir. Can you hear me? Yeah. So, what should be the strategy while preparing for the interview? Yeah, good morning, Rini. Interview itself is a separate topic of discussion, but to just give you an idea in a nutshell,
गो थ्रू दी नोटिफिकेशन, यूपीएससी नोटिफिकेशन, उनमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स के लिए कुछ खास क्वालिटीज एनलिस्ट की है, ठीक है, तो आपको उन क्वालिटीज पे वर्क करना है। आपका प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर, इट शुड अपीयर दैट अ फ्यूचर ऑफिसर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, द वे यू आंसर, the way you analyze, the way you listen to the questions very carefully. And interview is a personality test, it's not a test of your knowledge, because आप मेंस क्लियर करके जब वहां फाइनली 2-2,500 कैंडिडेट्स में आप पैनल के सामने बैठे हैं, it just goes to show, and panel also knows that you have cleared mains, so you have the knowledge, but you need to explain things in a way that the panel desires. It should be a focused discussion, it should be supplemented with facts and relevant examples. I'm stressing on the word relevant because the panel will ask the certain questions which can be analysis based, so आपको उस एनालिसिस को एकदम रेलेवेंट पाथ पर ही रखना है। एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमको आंसर्स आते हैं, बहुत बार हमको डिस्कशन आता है, बट वहां पैनल के सामने जाके काफी लोग जो हैं घबरा जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। तो अगेन इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसमें मैं बिलीव करती हूँ, और बिलीव करने के लिए मेरे पास ये लॉजिकल रीजंस हैं, बैक्ड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दी प्रेजेंट पॉलिसीज, the legal guidelines which are there. So this is pretty much it. Many people may say that interview is very dynamic, किसी को कम नंबर मिलते हैं, ज्यादा नंबर मिलते हैं, but we should not go into subjectivity of it. There are multiple panels, and I personally feel if you work hard, you can score well in interviews also. Yeah. Next question, Rini, you. Yes, sir. So the next question was, what will help us to stand out in the interview compared to the other candidates? Yeah, please repeat question, Rini. Can you just come again? Yes, sir. What will help us to stand out in the interview compared to the other candidates? Yes, your answers, definitely your answers, the way you interact with the panel. Panel looks for people who are straightforward, who are giving, who are not bluffing around. ठीक है, तो अगर बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आंसर्स नहीं आएंगे, या कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या वो डेलिबरेटली ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जो शायद एक्सपेक्टेड ना हो कि आपको पता हो, तो यू शुड बी ऑनेस्ट कि आई डोंट रिमेम्बर सर, आई डोंट रिकलेक्ट सर और मैडम, whomsoever is chairing the panel. That will give an idea, or that will give a signal to the panel that the candidate here is very clear in his thoughts. अगर आपको कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है, तो you can seek permission of the panel कि sir or madam, if I may guess, if they allow you, please do. If they don't, you refrain from doing so. This is one of the qualities I feel, because honesty and integrity is very important. When I say integrity, it should be like आपका जो रिएक्शन है वो सारी चीजों में मोर और लेस ऐसा ड्विंडलिंग सा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार आंसर नहीं आता है तो आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि मुझे नहीं आ रहा है, दूसरी बार भी नहीं आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट ही है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। डोंट बी अशेम्ड और डोंट बी ऑन अ बैकफुट कि मुझे दूसरा भी आंसर नहीं आया, तीसरा भी आंसर नहीं आया। मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि बैक टू बैक आई वाज आस्क्ड 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड दे वर टेक्निकल इन नेचर, इंजीनियरिंग के थे, बट मुझे इंजीनियरिंग करके लगभग 3-4 साल हो गया था। आई वाज अपीयरिंग एंड आई वाज आल्सो सर्विंग दी सीआरपीएफ, तो मैं ब्रश अप नहीं कर पाया था कंसेप्ट ढंग से, तो मैंने सीधा सीधा आंसर दे दिया था। 4-5 बार मैंने वही कहा था कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिकलेक्ट, आई डोंट नो आल्सो वाज माय आंसर फॉर फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस। So I don't think I was penalized for it. I scored decent marks. I could fetch around 190 out of 275. So that is pretty much it. That will help you stand out. Your turn up should be proper. आप attire आपका proper होना चाहिए. You should be presenting yourself in a proper manner. And I think उसके लिए आपको guidelines internet पे मिल जाएगी how we are to dress up. But that is not that is just like the icing on the cake, mind you. But the real content, the real thing which will help you stand out is the way you answer, the way you listen to the questions carefully. Your answer should be relevant to whatever is asked. It should be succinct, it should be precise, and more importantly, and most importantly, it should be honest. Yeah. Over Thank to you, sir. Yeah. So next question, Roshan Gupta, please ask question. Yes, sir. Yeah. Also, so my name is Roshan Gupta. I'm preparing for civil service. Recently, I gave the prelims exam, Yeah. and now I'm preparing for a mains exam. So my question that is,
So there is a necessary to, sir, in a mains exams to flow chart and diagrams or not? See, that just goes to show the analytical skills that you have, because आपकी आंसर जो QCA बुकलेट रहेगी वो छोटी सी रहेगी, उसमें लिमिटेड स्पेस है. तो डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना अच्छा भी है अगर आप इतना सारा लिख नहीं सकते हो, बट उस डायग्राम के माध्यम से आप उसको कंसाइज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट. इट्स नॉट बैड to draw diagrams and flow charts. Many people do it, even I have done it for the exams, and I think it helps you reduce the time also. जहाँ 4-6 लाइन लिखनी पड़ती है उससे अच्छा फटाफट एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप ब्लॉक डायग्राम्स बना सकते हो. तो I think it's a part of your creative analysis. You should not refrain from doing so, but having said that, utilize your space in QCA booklet properly. That will come by frequent practice of answer writing. So I think you should draw flow charts and diagrams as and when necessary. Yeah, Roshan. Yeah, sir. Roshan, next question. Sir, my next question is that there is a compulsory all types. There is a compulsory to all. We should be write all questions or 8 to 9. It depends because if you are able to answer all the questions, well and good. क्रिकेट खेलते हो आप, रोशन? Yes, sir. है ना? क्रिकेट में कोई ऐसा बोलेगा आपको कि यार 50 ओवर की जगह आप 45 ओवर ही बैटिंग कर लो, चलेगा क्या? नहीं ना. It's every ball is a scoring opportunity. So is every question. Why should we do away with any question? अगर वो मुझे आता है, ठीक है, अगर मैं उस पर छक्का मार सकता हूँ तो मैं मारूंगा, वरना आप डिफेंस कर दीजिए या छोड़ दीजिए ना उसको. ठीक, वो क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आता है तो यू लीव इट. यू फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, उसको आप बढ़िया तरह से लिखिए ताकि आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकें. मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, बट हमको पता होता है कि कमीशन 20 से 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में पूछता है. तो हमको पता है कि मेरी मेंस 17 सितंबर को आई थिंक इस बार है ना. तो मुझे पता है, एक साल पहले यूपीएससी टाइम टेबल डिक्लेयर कर रहा है. नो एस्पिरेंट हैज एनी राइट टू से कि मुझे पता नहीं था, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, मेरा हाथ दुखने लग गया, मुझे आता था पर मैं लिख नहीं पाया. These are all excuses. This is like a criminal waste of opportunity to write the mains exam, the prestigious mains exam. ठीक है, तो आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आप पूरे से पूरे बेहतरीन तरह से अटेम्प्ट कीजिए. जो नहीं आते हैं वहां टाइम वेस्ट मत कीजिए. अगर फिर भी समय बचता है तो थोड़ा बहुत सोच के आप लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है. ओके, so please try and attempt all the questions. These are opportunities, boss. So why do you want to miss on those? ठीक है, रोशन? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, rest of the students, like many of the students, they send me questions. So you are having opportunity to ask question and to clear your doubts. We are regularly available, but our officers are not regularly available. Yeah, Ruchita, you had question. You sent me yesterday. Ruchita Pavaskar. Hello, sir. Hello, sir. हाँ, Ruchita, Yeah, good morning, continue. Ruchita. Good morning. Yeah, go ahead, please. Good morning, sir. Actually, my question is how to cope with the time, especially in math solving, and how to deal with one-third negative marking system. Yeah, I'll come to the negative marking part first, because यही part है ना जो हम लोग को पुल कर देता है नीचे. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है. तो आप जब प्रीलिम्स के एमसीक्यू पेपर सॉल्व करोगे, आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू गेट अ स्मॉल स्टॉप वॉच. ठीक है, छोटी सी स्टॉप वॉच आती है जिसपे डिस्प्ले में सिर्फ टाइम डिस्प्ले होते रहता है और कुछ नहीं रहता है, बड़ा बड़ा सा. इट विल बी लाइक अ पार्ले जी साइज बिस्किट. ठीक है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. प्लीज बाय दैट वन. Keep it on the left side of your study table and try solving the MCQ prelim paper as if आप actually UPSC का एग्जाम में अपीयर हो रहे हो. मेंटेन योर बॉडी क्लॉक ऑल्सो. सुबह 9 बजे ही स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी अट्यून्ड है उस टाइम पे बैठ के उस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए. फिर आप जब ये पेपर खत्म कर लोगे, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए और फिर यू स्टार्ट चेकिंग द आंसर्स. तो आपको पता चलेगा कि जब आपने कितने आंसर सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं. जो गलत आंसर है वो गलत क्यों है वो चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपको वो टॉपिक ढंग से नहीं समझा है, ऑल्दो आपको लग रहा है कि शायद आपको वो समझ चुका है अच्छे से. ठीक, तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो अटेम्प्ट करने का दायरा रहेगा ना, वो एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन में आएगा, विच विल बी टेलर मेड टू योर प्रिपरेशन, exclusively tailor made to your preparation. For that you need to solve at least 10 to 20 question papers minimum. ठीक है,
तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना गेस करती हूँ, मैं कितना श्योर शॉर्ट आंसर लगा रही हूँ, और कितना जो है जो मैं लॉजिकली डिराइव करके आंसर दूँ। लॉजिकली कि वो थोड़ा सा जैसे मैं करता था 4 ऑप्शन है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में से एक है, तो फिर आपको चांस लेना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक रेट कितना है। अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो आप उसमें चांस लीजिए। वो स्ट्राइक रेट कैसे पता चलेगा? जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, 10 15 20 क्वेश्चन पेपर्स, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा ऐसे ही आप कंटेन कर सकते हो। कुछ लोगों का होता है कि स्ट्राइक रेट हाई होता है तो 100 में से 60-65 ही अटेम्प्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं लॉजिकल एनालिसिस करके जो 4 में से 2 ऑप्शन जीरो इन करते हैं, बाद में उसमें लगाते हैं, तो दे गो स्लाइटली अबव 70 80 हाई 80s में जाते हैं। एंड सम पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 60 65 मेरे तो राइट है ही, तो वो बंदा फिर 90 भी क्रॉस करता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो वो 90 95 तक शुड बी टेलर मेड, तो वो बंदा 95 वाला भी क्लियर होता था, 60 65 अटेम्प्ट करने वाले भी बंदे क्लियर होते थे। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिराइव कीजिए। ठीक है, रहा सवाल मैथमेटिकल क्वेश्चंस का कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। टाइम हमको ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को प्रोसेस करने में समय ज्यादा ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो बड़ा होता है कि उसको पढ़ने में आपको 1 1 मिनट लग जाएगा कभी कभी। ठीक है, बट उसके नीचे 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, एक ऐसा सीरीज होती है। दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस टू स्कोर मार्क्स, बिकॉज वो एक का आंसर मिल गया, दूसरे से जुड़ा होता है, तीसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भरपूर करनी पड़ेगी। और मैं इसीलिए अभी बोलते हुए स्टार्ट किया था कि आप सब लोग स्टॉप वॉच खरीद के वो टाइमर लगा के स्टार्ट कीजिए। टाइमर से टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपकी स्पीड कितनी इंप्रूव हो रही है वो भी आपको पता चलेगा, गलतियां कहाँ हो रही है पता चलेगा, क्यों हो रही है पता चलेगा, कि कंसेप्ट कहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये सब चीजें जब आप होलिस्टिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ, मेरा निगेटिव मार्किंग का भी जो स्कोप है वो कम हो रहा है, मेरे क्वेश्चंस कम गलत हो रहे हैं, ज्यादा सही हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है। रुचिता। Thank you, sir. So there was one more question. Hello. जी 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 जी। So actually, I have a stammering problem. So can it be a barrier in interview? स्टैमरिंग प्रॉब्लम, Yes. बट आई डोंट सी यू स्टैमरिंग नाउ। आई थिंक वो मोर साइकोलॉजिकल है, जब आप शायद थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो तब आप स्टैमर करने लगते हो। मेरे एक बैचमेट है, उनको भी यही Yeah. समस्या थी, बट ही इज इन सर्विस विद अस नाउ। तो वो जब कॉन्शियस हो जाते हैं वो स्टैमर करने लगते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है, दैट शुड नॉट गो अगेंस्ट यू, बिकॉज as long as you are saying the right thing, it should not deter you, rather it's a part of सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आई डोंट थिंक इंटरव्यू में, मान लीजिए होता है सबके साथ, हम सब नर्वस होते हैं, इतने एस्टीम्ड पैनल के सामने हम लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम बैठे होते हैं, तो होना ऑब्वियस है, बट यू नीड टू कंफर्ट योरसेल्फ, it will not go against you. I don't feel UPSC will penalize anyone for stammering or something. It's very unlikely, highly unlikely. Okay, sir. Yeah. Thank you so much. Yeah. मंगेश जी, some questions were yesterday भी आपके पास आ गए थे, हो सकता है कुछ विद्यार्थी ज्वाइन ना कर पाए हो, तो आप भी ले नहीं सकते हैं। You can नहीं just नहीं, shoot. जिन्होंने भेजे, जी। उन्होंने पूछ लिए है। अभी एक चार्ट बॉक्स में अंश पालपांडे नागपुर से ही है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, safeguarding the Indian art heritage is the need at this moment or not? In art, ऐसा चार्ट बॉक्स में अंश ने क्वेश्चन पूछा है, आप देख क्या लीजिए क्या पूछ रहे हैं अंश? चार्ट में। अंश, you can see, instead of sending questions in a chat box, you can ask question directly to sir. Good morning, sir. Sir, Yeah, safeguarding good the morning. Indian art heritage is the need at this moment or not? Yes, yes, safeguarding the edge is indeed the need. It will always be a need. हाँ, आगे
हेलो हाँ हाँ हाँ। अंश, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बताइए, पूरा क्वेश्चन पूछिए आपका। सेफगार्डिंग इज द नीड एंड आई थिंक आई एग्री, यस इट इज द नीड, much Sir, needed, but why? that because that Why? helps you connect to your past, how we have evolved. हमारी कंट्री इतनी ग्रेट क्यों है वो आपको पता चलेगा, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा धरोहर है। ठीक है, आप जब जाते हो तो आपको प्रेरणा मिलती है ना ऐसी जगहों से, कि हमें भी ऐसा करना है, ऐसा बनना है। तो वो बहुत जरूरी है, उसको करना ही करना है आपने। ठीक है, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे जो उस पर काम करते हैं, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हमारा कल्चर इतना रिच है कि अभी भी हम उसके बारे में सीख ही रहे हैं। इतने हजारों सालों के बाद भी वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल इवॉल्विंग, वी शुड टेक प्राइड इन दैट, राइट? Okay, sir. Thank you, sir. या, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए, बाकी स्टूडेंट्स को Sir, अपॉर्चुनिटी can I? है। या कस्तूरी, या प्लीज गो अहेड। Good morning, sir. My name is Kasturi Shinde. I would like to ask you a question about like there are many UPSC aspirants who have a very busy schedule. So to study like to study for the exam, can you give some time management tips? या, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टिप्स तो होनी ही चाहिए, और सबको हमको कुछ ना कुछ टिप्स खुद से भी डिराइव करने पड़ते हैं। जैसे व्हेन आई वाज सर्विंग दी सीआरपीएफ, टाइम मुझे बहुत कम मिलता था पढ़ने लिखने के लिए, so much so that I could not read the current affairs for last 7 to 10 days when I was appearing for the interview. तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आपके पास दिन में तो 24 घंटे ही हैं, तो Yes, sir. आपको खुद को पता है कि आप 24 घंटे में क्या करते हैं। 6 से 7 घंटे तो आप अच्छी नींद लीजिए, वो आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचते हैं आपके 17 घंटे। ठीक, 17 घंटे में आई विल पर्सनली एडवाइस कि इफ यू आर वर्किंग, तो आप सैटरडे संडे जो भी आपके ऑफ होते हैं उसको बहुत हेवीली यूज कीजिए, बहुत ज्यादा हेवीली। अगर आप वर्किंग नहीं है तो फिर आप जो है अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए प्रेफरेबली, या अगर कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ाई करना पसंद होता है तो वो रात में थोड़ा सा लेट स्ट्रेच करें। अवॉइड करें जो भी चीजें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करती हैं। जो बचे हुए 17 घंटे है ना, इसका एनालिसिस हर एक बंदे का इंडिविजुअल रहेगा, कि कौन खेलने जाता है, घूमने जाता है, दोस्तों के साथ रहता है, फोन पे रहता है, इंटरनेट पे रहता है, गाना सुनता है, मूवीज देखता है। ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड में रख सकते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, स्पेशली कैचिंग अप विद फ्रेंड्स एंड द मोबाइल फोन हैज पेनिट्रेटेड इनटू आवर लाइव्स एंड फॉर द गुड। दो धारी तलवार है वो, जो अच्छे से यूज करना चाहता है उसकी टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के लिए यूज कर सकता है, अपने डाउट क्लियरेंस के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए यूज कर सकता है, ऐसे सेशंस अटेंड करने के लिए यूज कर सकता है। might use it for some recreational activity which is not needed। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाई के समय बिल्कुल नो होती हैं। ठीक, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट उसी तरह से करना है। मैंने शुरुआत सैक्रिफाइसेस से की थी ना, दिस इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। आपको दोस्तों से मिलना सीमित करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई पर्टिकुलर इशू है तो बताइए, देन वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सर लाइक ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं है, लाइक अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो सुबह कॉलेज रहता है, फिर लाइक दोपहर को एक कंप्यूटर का क्लास लगा है MSCIT एंड ऑल, और फिर शाम को ये वाला क्लास रहता है, तो फिर उसमें टाइम लाइक कॉलेज के साथ साथ इसका लाइक आप दोनों तो अभी सेकंड ईयर में है ना? हाँ, यस तो आप सर। अभी सेकंड ईयर में हो, टू अर्ली टू स्टार्ट। दिस इज फॉर एवरीवन आउट देयर। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, इट इज मोर एडवाइजेबल फाइनल ईयर। या अगर आपका फाइनल ईयर बहुत एंगेजिंग है तो प्लीज स्टार्ट इट आफ्टर योर फाइनल ईयर। इन द मीन टाइम ऑल यू कैन डू इज, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो प्लीज रीड वन नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। अगर आप इंग्लिश माध्यम से अपियर होना चाह रहे हैं तो एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जिससे आपको जो आप कंफर्टेबल हैं। और अगर हिंदी या मराठी माध्यम से कर रहे हैं तो लाइकवाइज उस लैंग्वेज का आप न्यूज़पेपर पढ़िए। समय फिर भी बैठता है तो कोई एक मंथली मैगजीन ले लीजिए सिविल सर्विसेज की, काफी सारी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से आपको समझता है, जिसकी लैंग्वेज आपको सिंपल लगती है वो पढ़िए। फिर भी समय बचता है तो एनसीईआरटीज पढ़िए आप। ठीक है, बाद में जब आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारा समय रहेगा, उसको मैनेज कीजिए और हमेशा स्लॉट्स में पढ़ाई कीजिए। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए, एक दिन में कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़िए, तो आप देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस ज्यादा ज्यादा फास्ट है। 2 से 3 घंटे या 4 घंटे दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक पॉइंट के बाद आप सैचुरेट हो सकते हैं, तो आपकी पेस ऑफ लर्निंग जो है वो स्लो हो जाएगी। आई सजेस्ट यू शुड स्टडी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे।
सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को लास्ट में रखिए, सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप मॉर्निंग में जब फ्रेश होते हैं तो उसको हिट कीजिए विद फुल एनर्जी, एंड जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स की तरफ आइए। मैं करंट अफेयर्स सबसे एंड में पढ़ता था इवनिंग में, बिकॉज उसमें कंटिन्यू फोकस तो नहीं लगता है, न्यूज चेंज होते रहती है, टॉपिक चेंज होता रहता है, एक न्यूज ज्योग्राफी की रहेगी, एक एनवायरमेंट से रिलेटेड रहेगी, एक पॉलिटी से रिलेटेड रहेगी, सो दैट हेल्प्ड माय प्रिपरेशन। तो आई थिंक उस तरह से आप लोग भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है थैंक कस्तूरी? यू सर। Yeah, without taking any name, rest of the students, you are free to ask question. It's a very like wonderfully, he's explaining very nicely. So take a benefit of that. Okay. This session is not just for few candidates. This is for all of you for your enrichment. Yeah, Sarvesh. Sarvesh. Yeah. हाँ ask सर, question. हो Yeah. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर्वेश. Sir, my question is, can you tell me something about your current work profile? Like, what exactly you do and what is involved? Like, for example, raids and all, or it is more of a like you are on an assistant commissioner level, so it is more of an office job and less field work. Very good question. Currently, I'm serving the Central Bureau of Narcotics, and herein I'm working in as capacity of Assistant Narcotics Commissioner. ठीक है, हम लोग का फील्ड वर्क है, we do go on field operations. ठीक, first, and it involves anti-drug operation, anti-narcotics, NDPS, साइकोट्रोपिक भी होते हैं। नार्कोटिक्स का प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है, इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। नार्को फंडिंग के कारण काफी सारा पैसा इट इज एलिजेड की एंटी इंडिया एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट होता है। सीबीएन में हम लोग लीगल ओपीएम कल्टीवेशन के परमिट्स भी देते हैं, जो गवर्नमेंट ने 3 स्टेट्स में अलाउ कर रखे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। करंटली आई एम सर्विंग द मध्य प्रदेश यूनिट, एंड लीगल कल्टीवेशन का हेतु ये है कि इसके जरिए जो ओपीएम कल्टीवेट होता है, इट इज यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस, इट इज आल्सो एक्सपोर्टेड, एंड है कि ड्रग्स जो इसका मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, जिसमें पहले जब पेशेंट आता है बहुत पेन में होता है तो उसको पहला इंजेक्शन मॉर्फिन का लगाते हैं डॉक्टर्स, है ना। फिर आपका कोडीन होता है जो कफ सिरप में वगैरह यूज होता है, ये सब ओपीएम डेरिवेटिव्स हैं। तो हम लोग को इसको यूज करना है, अच्छे से यूज करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, ठीक। बट कुछ लोग इसको अब्यूज करते हैं। अब्यूज करना मतलब used in a way which is not healthy। हमारा काम उस ड्रग यूज को चेक में हो गया, ये हमारा प्रोफाइल है, हमारी एक टीम है, हमारी टीम में काफी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं हु वर्क डे इन एंड डे आउट। हमारे ऑफिस आवर्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उस हिसाब से हम लोग ऑपरेशंस पे जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करें। प्रोफेशनली हम लोग को उसको कंडक्ट करके उस चीज का सर्च करते हैं, सीजर करते हैं। सीजर करने के बाद कॉन्फिस्केशन होता है, दैट इज द ओनरशिप चेंजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोसिक्यूशन होता है, उसमें जो सजा मिलनी रहती है अक्यूज्ड को, उसके लिए हमारी लीगल टीम काम करती है। उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। तो काफी सारी चीजें होती हैं। वी हैव द पावर्स टू अरेस्ट आल्सो, वी हैव द पावर्स टू सर्च, वी हैव द पावर्स टू सीज। हम लोग नाका लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है। जिनको इस ऐसे काम में रस है, इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट लीजिए। जीएसटी एंड नार्कोटिक्स टू द एयरपोर्ट, आपको हमारे ऑफिसर्स वहां नजर आएंगे इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे। दे आर डूइंग द एंटी स्मगलिंग वर्क बेसिकली। सो जीएसटी वाले भी होते हैं, उसमें भी एंटी इवेजन में जो इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं वो बंदे सेम काम करते हैं। वो लोग बस जीएसटी की चोरी पकड़ते हैं और
हम लोग यहाँ CBN में हम लोग नार्कोटिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है And सर्वेश? yes, sir. I think that pretty much sums it up. Yeah, thank And you. sir, I have one last question. Yeah. Sir, after a few days before, when there was a drug smuggling case like a Mundra Port case, then Aryan Khan case, then afterwards it was in news that there needs to be amendments in NDPS Act, and some people were criticizing that it is outdated and all. So what is your take on this? Because it doesn't cover certain drugs like steroids and all, according to which I have read. So due to which there is a large amount of steroid rackets are going on. I think it's a policy decision. We all have elected representatives in the parliament. अगर NDPS Act को संशोधन की जरूरत है, amendments की जरूरत है, तो amendments in acts are not alien to our society and our governance. I think अगर इसकी जरूरत होगी तो that will be definitely a policy call taken by our elected representatives. And I think evolve होना चाहिए. अगर act में संशोधन की जरूरत है तो why not? Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you for your time. Yeah. Yeah, Nahida, you can ask question. Nahida, Kshitij, Mayuri. Yes, sir. Hmm. So my question is that how to develop personality and communication skills required for interview? Okay. Yeah. Good morning, Nahida. Personality is an evolving thing. The day you are born, तब से आगे तक आपकी पर्सनालिटी डेली इवॉल्व होते रहेगी, ठीक है? आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे, आपकी एक लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है? तो वो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली शेप करते रहते हैं, ठीक? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है कम्युनिकेशन. इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक वर्बल होता है, जैसे आप और मैं अभी अगर बात कर रहे हैं तो इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन. वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक, which is something you communicate with your body language, है ना? तो हमको इन दोनों चीजों पे काम करना है. हमारी बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव इन अ वे एज पर द सिचुएशन ऑल्सो. जब आप पैनल के सामने बैठे हैं, इट शुड बी रिसेप्टिव, इट शुड बी कॉन्फिडेंट, इट शुड बी कंफर्टेबल ऑल्सो. यू शुड बी स्माइलिंग व्हाइल यू आर आंसरिंग एंड ऑल. स्माइल जस्ट गिव्स, वो अच्छा माहौल बनाता है ना. जब हम लोग स्माइल करते हुए किसी से बात करते हैं तो एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है. इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनवायरनमेंट. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. वो कॉन्फिडेंस भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा. दैट इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगेन. व्हेन यू स्पीक योर स्पीच शुड बी लाउड, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? जो भी आप बोल रहे हैं वो पैनल को समझ में आना चाहिए, वो क्लियरली समझ में आना चाहिए. बहुत बार आप लोग सही आंसर्स देते हैं बट कॉन्फिडेंस चाहिए. अगर नहीं करें तो ठीक है, पैनल को लगेगा यार ये बंदा खुद ही श्योर नहीं है, या ये लेडी कैंडिडेट तो खुद ही श्योर नहीं है. तो वो डेवलप करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करता था. आई यूज्ड टू इमेजिन कि पैनल ने मुझे XYZ क्वेश्चन पूछ लिया एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट आंसरिंग, ठीक? तो वो आप करिए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत से आयाम हैं उसके, बट आप एक और चीज उसमें होती है कि आपका अटायर होता है ना, वो भी डिटरमिन कर. सोबर कलर्स आर मोर डिजायर्ड, ठीक है? लगना चाहिए कि गुड भी अफसर सामने बैठी है. तो इन चीजों चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए. जो चीज नहीं पता है तो भी कॉन्फिडेंस से बताइए कि नहीं पता है. उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. बहुत से सबको सब कुछ नहीं पता होता है, ठीक? तो जो चीज हमको नहीं पता है उसमें बता दीजिए आपकी, मुझे पता नहीं है सर मैडम, मे बी आई नीड टू स्टडी द इशू इन डिटेल. मैंने इसका अभ्यास नहीं किया है, शायद मुझे इसकी और करनी पड़ेगी.
Let me go to the next question. Sir, can you explain short journey for you? आपकी normally journey कैसे थी for startup? हाँ, start ना, आप नाम क्या है? मैं I think I lost you in the beginning. Kanchan. Speaking in between. कंचन, हाँ, तो कौन सी जर्नी जाना चाह रही है? प्रिपरेशन वाला पूरा, बड़ी लॉन्ग जर्नी रही है मेरी। Yes sir, yes sir. हाँ, लॉन्ग जर्नी ऐसे रही कि कॉलेज से पास आउट हुआ मैं। कॉलेज से पास आउट होने के बाद आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल्स का तैयारी करना है, पहले से ही मैंने मन बना रखा था। तो मैं पहले पुणे गया, पुणे में मैंने ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट में तैयारी करी जनरल स्टडीज की, ऑप्शनल स्कीम। वहाँ अपियर होने के बाद एग्जाम में मैंने रियलाइज किया कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस मेरी थोड़ी कम पड़ रही है, क्योंकि मेंस में नंबर ठीक नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए दिल्ली चलते हैं। दिल्ली गया मैं, दिल्ली में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट जब मैं आंसर्स लिखता था। लाइक आई मेंशन, मैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस पे इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिफाइनमेंट होते रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद मेंस का आंसर लिखते हुए, क्वेश्चंस लिखते हुए, मतलब एग्जाम में अपियर होते हुए आपको लगता है कि यार मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेरी वेल टुडे, मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन जब आप अच्छा लिखते आगे बढ़ते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस उस एग्जाम में ऐसे ऊपर ऊपर जाता है उन 3 घंटों में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेम्पो मेंटेन करना, बिकॉज पहले 3 घंटे आपके अच्छे हो गए, सेकंड हाफ में आप 6 घंटा पेपर लिखते हैं, सेकंड हाफ में दूसरा 3 घंटा है, उसमें भी आप वो टेम्पो लेके जाते हो। मान लीजिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वाला भी होगा, यू विल बी एबल टू टैकल इट बेटर। या हो सकता है कि बाकी आंसर्स लिख के जब आते हैं अच्छे से तो पीछे आओगे तो बहुत बार पता चलता है कि यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो क्लिक कर जाता है, ठीक है, बट वो फर्स्ट रीडिंग में क्लिक नहीं करता है, जब आप घूम के वापस आते हैं तो क्लिक करता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो मैंने रियलाइज किया। जर्नी मेरी बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, उसके लिए तो अभी समय हमारे पास सीमित है, बट लाइक आई मेंशन देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कंडक्ट आवरसेल्व्स वेरी रिस्पॉन्सिबली। जब आपके पेरेंट्स आपको इतना विश्वास करके बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, तो प्लीज प्लीज कंडक्ट योरसेल्फ इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। उस समय को, उस फ्रीडम को, उस मॉनिटरी असिस्टेंस को जो आपके फादर मदर या आपके परिजनों से आपको मिलता है, उसको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए, फ्रीली इस्तेमाल कीजिए, बट जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए। एंड पहली पोस्ट, मेरी पहली नौकरी सीआरपीएफ में थी। आई वाज द असिस्टेंट कमांडेंट एसीपी करके मैं सिलेक्ट हुआ था। वो भी ऑल इंडिया एग्जाम होता है यूपीएससी का। उसके लिए मुझे 24 किलो वजन छोड़ना पड़ा था, मेरे पास 3.5 महीना ही था। तो और साथ ही साथ में 5 एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहा था साइमल्टेनियसली, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस, सीएपीएफ का फिर से मैं दे रहा था, एमपीएससी का मेंस आ रहा था, आरबीआई ग्रेड बी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम होता है, जिन जिनको पता नहीं है प्लीज नोट कर लीजिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी 80 से सर लाइक एबीसीडी ऐसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा वजन भी घटा रहा था, तो बड़ा चैलेंजिंग था वो, बट आई कुड सक्सेसफुली रिड्यूस द वेट। आई क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल पार्ट, वो क्लियर कर लिया। उसमें दौड़ना, शॉर्ट 800 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप होता है, सब मैं कर पाया। शाम में जाके मैं जो पोलीस भरतीची तयारी करतात काही मुलं, त्यांच्यासोबत नागपूर युनिव्हर्सिटी ग्राउंडवर मैं अपना करते रहता था, बट जब वो लॉन्ग जंप वगैरह करते थे तो उनके साथ जाके प्रैक्टिस करता था। उनका जरा ज्यादा होता था क्वालिफाइंग मीटर्स, हमारा थोड़ा सा कम रहता था, तो उनको देख देख के, टेक्निक सीख सीख के मैं भी करता था उनके साथ, बड़ा मजा आता था। बट दैट वाज गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी आल्सो, क्योंकि मेरा आउटडोर एक्टिविटी हो जाता था उसके साथ। आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आज मैंने अच्छा किया है, और वेट स्केल पे मैं नीचे नीचे जा रहा था, दैट वाज एडिंग टू माय कॉन्फिडेंस अगेन। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सीआरपीएफ ट्रेनिंग वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इनिशियली हम लोग सब बहुत डिस्ट्रेस थे कि इतनी रगड़ा पट्टी ट्रेनिंग कराते हैं, ये मतलब हमको लगता था बड़ी अनसाइंटिफिक है, एंड हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। तो बट having said that, now I recollect and I fully
subscribe to the view that the training was extremely scientific. जिस तरह का काम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दी लार्जेस्ट आर्म पुलिस इन द वर्ल्ड करती है सारे टैक्टिकल ऑपरेशंस में, ना सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, एंटी टेरर में करती हैं, रायट्स में करती हैं, एसपीजी में वगैरह जाते हैं हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज में सीआरपीएफ इज कॉल्ड, इंटरनेशनल मिशंस में सीआरपीएफ इज कॉल्ड, क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक दी क्रिटिकल एयरपोर्ट्स, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, ये भी सीआरपीएफ के अधीन है। तो उस डॉन्टिंग टास्क के लिए, उस फील्ड टास्क के लिए वो ट्रेनिंग हमको तैयार करती है और बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। उसके दौरान काफी चैलेंजेस आए, काफी इंजुरीज आई, मुझे इंजुरी होती थी, बट हम लोग उसमें भी रिकवर करते थे और करते थे, आगे बढ़ते थे। तो that training made me mentally tough. I think I owe a lot of part of my personality. अभी किसी ने पूछा था ना पर्सनालिटी इवॉल्वमेंट, आई थिंक इट वाज नाहिदा, आई गेस। या तो वो मुझे लगता है कि उसमें सीआरपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। एनफोर्समेंट टास्क्स करने के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए वो मेरा वहाँ डेवलप हुआ बहुत अच्छे से। तो सीआरपीएफ के बाद फिर उसी दौरान मैं प्रिपरेशन कर रहा था, किसी ने टाइम मैनेजमेंट का पूछा था थोड़ी देर पहले, थिंक, तो उस दौरान भी टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था। 3:15 बजे मैं उठता था एंड 4 बजे का मार्का होता था, बीच बीच में टाइम मिलता था। तो हमारे पॉकेट्स होते थे ऐसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, उसमें मैं छोटे छोटे नोट्स मेरे बना के ले जाता था, वो फ्री टाइम में पढ़ते रहता था। आई मस्ट एडमिट मेरे उस्तादों का भी बहुत, उस्ताद सारे इंस्ट्रक्टर्स, उस्तादों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरे कुछ उस्ताद थे जो मेरे को लीवे दे देते थे, मैं ड्रिल में अच्छा था, मैं अच्छी ड्रिल कर लेता था। आई इवेंचुअली कुड हैड द ऑनर टू लीड द पासिंग आउट परेड फॉर माय आईआरएस बैच आल्सो। तो सीआरपी की देन थी वो। तो परेड करते अच्छी करता था मैं, तो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट उस्ताद कि मेरे को पनिशमेंट दे दीजिए, वहाँ कहीं कुछ राइफल लेके खड़ा कर दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ लूंगा। तो दे यूज्ड टू ओब्लाइज, बट हाँ करते थे, उसके लिए वहाँ खड़े हो जाइए, पनिशमेंट तो हमको नहीं पता, हम तो पनिश कर रहे हैं, बट पनिशमेंट ठीक से होनी चाहिए। तो काफी चीजें होती हैं जो एक अलिखित नियम की तरह होती है। माय आईजीसीआरपीएफ वाज आल्सो वेरी काइंड। मुझे गेम पीरियड से छुट्टी मिल जाती तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता था। गेम खेलने के बजाय मैं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता था, हालांकि बहुत होती थी। रात में मैं बैठता था तो 3-4 घंटे सोता था मैं ट्रेनिंग के दौरान। थोड़ा वो हेल्थ वाइज रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट में आई इंसिस्टेड कि 6 से 7 घंटा सब लोग लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है। ठीक है, मेरे पास चॉइस नहीं था ना, मेरे पास समय कम था, तो मैं थोड़ा बहुत मैनेज करता था। मैं सैटरडे खूब सोता था। सैटरडे वाज द रेस होती थी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता था। तो उसके बाद संडे ऑफ होता था। संडे काफी लोग बाहर जाते थे घूमने के लिए, शॉपिंग वगैरह कुछ अपना सामान लेने के लिए। गेट पास मिलता था हमको, आउट पास, वो मैं यूज करता था। मैं उस दिन सो लेता था 6-7 घंटे, तो मेरा नींद कवर अप हो जाता था। दैट इज हाउ आई मैनेज टाइम। तो ऐसी जर्नी थी, इवेंचुअली आई कुड क्लियर। तो अच्छा था, it was good. I'm still learning. I remember those days very fondly, although they were very, very challenging. I mention it to some of my friends also. वो ट्रेनिंग फिर से कोई करने को कहेगा तो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है कंचन। Yeah, so see, you need to identify one thing very important, which is just mentioned that he managed time. उतना जो डिफिकल्ट, मतलब ट्रेनिंग के फेज में आपको टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपका एक टारगेट है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, और उस सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए जो ट्रेनिंग के दरमियान 3 घंटे 4 घंटे या 1 घंटे का भी टाइम मैनेज करना है, वो अभी स्वच्छंद जी किस तरह से करते थे उन्होंने आपसे शेयर किया। हमेशा हम लोग ये बताते रहते हैं, लाइक स्वच्छंद जी, मैं जब भी अभी स्टूडेंट्स को तैयार करता हूँ तो मैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट सारा का सारा सब हम बताते रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मुंबई ठाणे रीजन में ऐसा है, जैसे हम नागपुर में या फिर महाराष्ट्र के किसी भाग में काफी सारे ऐसे एस्पायरेंट्स है कि बहुत डेडिकेटेड है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए या स्टेट सर्विसेज के लिए, और वो बहुत डेडिकेटेडली उसको करते हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ जो स्टूडेंट, अभी वैसे तो मेरे पास काफी फिल्टर स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं दे आर फ्रॉम संबोधि, जो अभी 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं अच्छे से, वो है, उनको अभी वो काफी सारी बातें पता चल चुकी है। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को सभी को अपील करूंगा कि यू शुड
अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आपके पास काफी टाइम होता है, कुछ कुछ बच्चों के पास तो वो उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, टाइम पास करते हैं हम। तो एक एक जो मिनट है, एक एक जो आपका आवर है ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन का उन्होंने अपनी जर्नी में आंसर दिया है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहिदा, यू आर हैविंग क्या मैं so many questions. Yeah, who is speaking? सर मी आदित्य Aditya, yeah, Aditya. Naida, you can ask after morning. Aditya. Okay, sir. Good morning, sir. My Yeah, question good is morning. how to analyze question PYQ effectively and how PYQ play important role in during preparation. How to analyze? Can you come again? Uh, how to analyze PYQ previous year question papers And what role of PYQ in during preparation. see, these previous year question papers are like a bioscope. ठीक है, वो आपको एक एक्सेस देते हैं इनटू द माइंड ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछती है, कितना डेप्थ में जाके पूछती है, कभी कभी कैसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अंडरस्टैंड कि स्कोप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय फर्स्टली रीडिंग द सिलेबस। सिलेबस को तो अपने हाथ से लिखिए आप लोग सब। ठीक है, अपने हाथ से लिखिए जनरल स्टडीज 1 2 3 4, और उसको अपने स्टडी टेबल पे रखिए। डेली पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले, जैसे स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे ना प्रार्थना के बाद, वैसे पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आप एक बार सिलेबस सिर्फ प्लेन रीडिंग करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेन रीडिंग कीजिए। आप रियलाइज कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको पूरा सिलेबस रटा गया है। रटा गया इन द सेंस उस ऑर्डर में नहीं रटा जाएगा, बट आपको कोई भी टॉपिक कहीं पता चलेगा या डिस्कस होगा तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा कि GS3 का टॉपिक है, GS1 का टॉपिक है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो आपको टॉपिक रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी जब आप देखते हो तो आपको सिलेबस से लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत से, कि उस क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा गया, ये क्वेश्चन फलाने टॉपिक से पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, एनवायरमेंट था, पॉलिटिक्स था। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको एनालाइज से करना है। आजकल तो आपका काम बहुत आसान हो गया है, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस दे देते हैं PYQs का। आप मार्केट में जाइए, उनको बोलिए कि मेरे को प्रीवियस टॉपिक वाइज एनालिसिस का। एक क्या है, हम लोग वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी आर गवर्न्ड बाय इमोशंस। तो जो पेपर सेटर हैं वो भी हमारी तरह ही है, उनके भी कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं। आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो टॉपिक में ज्यादा स्कोप होता नहीं है, वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। आपको एडवांटेज हो जाता है, आप वो टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत मजबूत आंसर आप लिख पाएंगे, आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज डू दी PYQs, एनालाइज, गेट दी रेडीमेड एनालिसिस आल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट विल सेव यू टाइम। ठीक है, और जब आप सिलेबस पे कमांड डेवलप करोगे हाथ से लिख के, रोज रोज पढ़ के, यू कैन लिंक कि कौन सा सिलेबस के टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है आदित्य? Yes, sir. Yeah, Naida, you can continue with your questions. Naida and yes, rest of sir. the students, Kshitij, and then Mayuri also. You wanted So to my ask? question is how to approach essay paper, because nowadays mostly philosophical types of essays are asked. So how to approach that essays? Essay is generally, I feel, is a test of how you express yourself. Philosophical topics are open-ended questions. आप जनरल स्टडीज में open-ended question का प्रैक्टिस करते हैं ना नाइदा? Yes, sir. क्वेश्चंस को आप जैसे अप्रोच करते हैं वैसे ही उसके नाम निकाल आपको अलग अलग उस फिलोसॉफिकल पर्टिकुलर स्टेटमेंट के। साल पहले बहुत अच्छा टॉपिक आया था, बी द चेंज यू वांट टू सी, है ना? ये थिंक गांधी जी का Yes. कोट है ये। Yes, आप लोग yes. कभी पार्लियामेंट विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां गांधी जी के स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है। मैं ये परीक्षा पास करने के बाद जब पार्लियामेंट विजिट पे गया तब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे ये कोट इंस्क्राइब्ड है करके। हम सब जानते थे गांधी जी का है, बट वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छे से उसको लगा रखा है गांधी जी के स्टैचू के पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिलेबस से रिलेट करना है। मैं फिर से सिलेबस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वो आपका ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, वो आपका डोमेन है, वो उसी में खेलना है हमको। रादर यूपीएससी भी उसी में चलेगी।
सिलेबस से लिंक करते चलिए, उसके अलग अलग लेयर्स निकालिए। हर एक टॉपिक के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, हर एक टॉपिक के कुछ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स होंगे, रीजनल एस्पेक्ट्स होंगे, नेशनल होंगे, इंटरनेशनल होंगे, लोकल होंगे, एनवायरमेंटल होंगे, ठीक है, और हो सकता है लिंग्विस्टिक हो, ठीक। तो इन सब एंगल से उसको एक्सप्लोर करना है। फिलोसॉफिकल टॉपिक ध्यान से देखा जाए तो एक फुल टॉस बॉल की तरह होता है क्रिकेट के, उसको जहां मर्जी आप मार सकते हो, ठीक? उसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, करेक्ट, डू यू एग्री? उसका कोई सही या गलत नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक। तो आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलग अलग आयाम, उसके अलग अलग लेयर्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कीजिए, और लेट इट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लैंग्वेज ऑफ ऐसे शुड ऑलवेज बी सिंपल। इमेजिन कीजिए कि आपका ऐसे पढ़ के एक 10वीं या 8वीं से 10वीं का विद्यार्थी उस टॉपिक को पूरी तरह से समझ जाए, ऐसा होना चाहिए। उसमें अगर आप कोट्स डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, कोट्स डाल के उसको समझाइए। एनेक्डोट्स वगैरह अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट इट शुड बी इन ट्यून, उसके फ्लो में आ जाना चाहिए वो प्रॉपरली, ठीक। तो प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है, ऐसे काफी स्कोरिंग हो सकता है, इट्स अ गेम चेंजर। एंड फिलोसॉफिकल टॉपिक शुड बी वेलकम। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें, ठीक है। तो प्लीज वर्क ऑन दीज टॉपिक्स, ट्राई टू रिलेट देम टू सिलेबस एंड गो लेयर बाय लेयर। उसकी एक रफ रूपरेखा बना लीजिए आप पहले पीछे के पेपर पे, टॉपिक को ऐसे सेंटर में लिखिए और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स निकालिए, सोशल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, एक्स वाई जी, व्हाटएवर आर देयर, ठीक। और उस हिसाब से आप उसको लिखना चालू कीजिए, अप्रोच करना चालू कीजिए। आपके टॉपिक में, आपके एक्सप्लेनेशंस में एक ऑप्टिमिज्म आना चाहिए। आपके इसमें प्रॉब्लम्स अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो सॉल्यूशंस भी आप देना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बिकॉज एज ब्यूरोक्रेट्स वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स ओनली। हम वही करते हैं, सब लोग हम वही करते हैं। तो ये परीक्षा उसी का टेस्ट है, उन्होंने नहीं भी पूछा है तो भी आप उसको जस्टिफाई कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके सॉल्यूशंस दीजिए। Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, any more question, Naida? Okay, Kshitij, you had a question. Kshitij, Mayuri. Sir, Hello. very good morning. या क्षितिज जी, उसके बाद मयूरी को हम लोग लेते हैं कॉन्वर्सेशन। Thank you, sir. Yeah, Kshitij, Sir, please ask. sir, my question was the small tips for resume building. स्मॉल टिप्स फॉर रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे बिल्डिंग तो आप अपनी पर्सनालिटी को डाइवर्स कीजिए। क्या हॉबीज हैं आपकी? Sir, gymming, swimming, जिमिंग, स्विमिंग है तो कॉम्पिटिशन, arting. अभी आपका जो भी एज होगा देख लीजिए, अगर आप अभी कॉलेज वगैरह में है तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लीजिए, या इन जनरल, जरूरी नहीं है कि आपके हॉबी से रिलेटेड हो। अगर आपको अपना रिज्यूमे एनरिच करना है, टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स, यू नो, डू सम कोर्सेस विच यू फील, विच यू लाइक, ठीक है। तो रिज्यूमे बिल्डिंग वैसे ही होगा, जितना आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, जितना आप पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाएंगे। हालांकि उसको जबरदस्ती भी नहीं करना है, जो जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है वही वही करते जाइए, वरना आप मोनोटोनस हो जाएंगे उसमें और आपका इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, तो यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो बायोडेटा देख के नंबर मिलते हैं यूपीएससी इंटरव्यूज में वगैरह, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, बट वो ये जरूर देखते हैं कि जो भी आपने किया है वो कितना सिंसियरली किया है, ठीक। तो अगर उसमें एकेडमिक ब्रेक्स भी है तो दैट शुड नॉट डिटर यू। किसी किसी का हो जाता है, 1 साल ज्यादा लगता है पढ़ाई में, ठीक है। तो मैं खुद भी फेल हुआ हूँ इंजीनियरिंग में, मेरे सब्जेक्ट्स रह गए थे, तो मुझे नहीं लगता मुझे पैनल ने कभी पिनलाइज किया उसके लिए, ठीक है। बट वट एवर यू डू, इट शुड बी विथ यू नो लॉट ऑफ सिंसियरिटी। और रिज्यूमे बिल्डिंग अगर आपको करना है तो आप जो भी आपके इंटरेस्ट के कोर्सेस हैं, कॉम्पिटिशन हैं, उसमें पार्ट लीजिए, कोशिश कीजिए अच्छा करने की। स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हैं तो प्लीज परस्यू कीजिए, जिम विम आप जाते हो तो अच्छा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, वर्क ऑन इट। Yes, sir. Sir, another question I had. Yeah. Yes, sir. I am also from engineering domain, sir. So in interview, how much technical questions are asked about engineering? दैट इज सब्जेक्टिव एक्चुअली। कभी कभी कुछ भी नहीं पूछेंगे, कभी कभी वो आपसे पूछ भी लेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक्स अपने तैयार करके चले जाइएगा। जो वाइवा का आपका एक प्रिपरेशन होता है ना, आपकी कोई गाइड बुक होगी, उसमें हम जब तैयारी करते थे नागपुर यूनिवर्सिटी में तो पीछे रेड पेजेस होते थे 30-40, उसमें वाइवा के क्वेश्चंस होते थे। तो वैसा कुछ आप बेसिक्स पढ़ के जाइए। सो अगर पैनल पूछता भी है तो आप बता सकते हैं, नहीं आता है तो बता दीजिए कि नहीं आता है, मुझे शायद याद नहीं आ रहा है या अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट जनरली टेक्निकल क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, बट अगेन दे कैन आस्क इफ दे वांट टू, इट इज वेरी सब्जेक्टिव।
Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, Mayuri. Mayuri and rest of the students, we have little time now. Okay, so freedom is given to all of you to ask questions. Don't miss this opportunity. Show is going very well, and like whatever answers you are getting that are very nice and useful for your successful preparation. So don't miss this opportunity, my dear students. Please. Yes, sir. Can I ask the question? Hi, yeah. Go ahead. Please Uh, continue. Yeah. Good morning, sir. Actually, I have a question that I am working and mostly I get 4 to 5 hours for the study. So how to cope up with the huge study in the limited time? See, good. The studies, they depend, they should be, studies का आकलन जो होता है ना, assessment जो होता है, वो quantity पे नहीं होना चाहिए, quality पे होना चाहिए, है ना? It is not about how much hours you put in. It's all about how much quality hours you put in. 4 to 5 hours are good if they are exclusively for your studies. एक टाइम टेबल बनाइए और सिलेबस को कवर करते रहिए आप. सैटरडे संडेज आपको ऑफ मिलता होगा. Yes, sir. यूज देम जुडिशियसली, उनको बहुत ज्यादा हेवीली यूज कीजिए. थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए 2 घंटा स्पेयर कीजिए उसमें, ठीक. बट आप वीकेंड्स हॉलीडेज को यूज कीजिए और 4-5 घंटा इज अ वेरी वेरी हेल्दी टाइमिंग. प्लीज यूज इट वेरी वाइजली. उसको अच्छे से यूज कीजिए, क्वालिटेटिवली यूज कीजिए. हफ्ते में एक बार टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक. आई थिंक हो जाएगा. 4-5 घंटा इज गुड यार, नॉट बैड. It's a very good amount of time you are managing. Keep doing that. Don't get bogged down कि मैं 4-5 घंटे ही पढ़ रही हूँ, फलाना तो 12 घंटे 15 घंटे स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहा है. वो to each his own, ठीक है. आपने जो टेलर मेड शर्ट अपने लिए सिलवाई है वो जरूरी नहीं है हर एक बंदे को फिट होगी, ठीक. तो आपका अपना एक पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी एक लर्निंग प्रोसेस है. आप उसको केटर कीजिए और उसको ही डेवलप कीजिए, ठीक है. क्वालिटी स्टडीज पे फोकस कीजिए. क्वांटिटी इज इमटेरियल. Exactly. Okay, sir. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. So yes, आयुषी, अभी मैं नाम लेता हूँ. वेदिका, उत्कर्षा, उमंग, तेजश्री, सुहाना, सिमरन. आखिरी 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं, प्रेफरेबली जिन्होंने नहीं पूछे हैं उनसे. हाँ, तो देखो अभी नाम लिए हैं कुछ बच्चों के जो रेगुलरली अच्छा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. सो आप पूछ सकते हो. इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग इन अ चैट बॉक्स, यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन. Hello, sir. Yeah. For mains answer writing practice, we should refer solved paper question or write by own, or is it useful to analyze topper's answer copy for it? Yes, it helps. आप जब आंसर्स देखोगे टॉपर्स के तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन को आपने ऐसे सोचा, ठीक है, ABCD फ्लो में सोचा आपने, ठीक है. टॉपर बंदे ने उसको PQRS फ्लो में सोचा है. हो सकता है आपके कुछ टॉपिक्स और पॉइंट्स ओवरलैपिंग भी हो, बट उन्होंने अलग क्या सोचा वो आपको देखना है, ठीक है. टॉपर्स के आंसर्स पढ़िए, आप ऑनलाइन मिलते हैं. इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी. रीड दो, पर उसके पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. जब आप अपना आंसर चेक करते हो तो फिर देखिए मिला के कि टॉपर ने उसको कैसे अप्रोच किया है, और आप फिर उसका एक इंटीग्रेटेड आंसर बनाइए, एक हाइब्रिड आंसर बनाइए, ठीक है. विजन IAS वगैरह ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं दिल्ली में जो मॉडल आंसर्स भी देते हैं. तो जब हमको टाइम कम होता है तो एंड में हम लोग तो मॉडल आंसर्स ही पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते रहते थे उसको नोट्स की तरह, ठीक. तो वो करिए आप. इट इज नथिंग बट अ वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन, ठीक है. आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, कुछ अच्छा केस स्टडी मिल जाएगा, कुछ नए पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कभी कभी सोचने का, जो आपके हर आंसर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा. तो दैट इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट. दैट इज अ मस्ट. प्लीज रेफर. इफ इट इज अवेलेबल यू मस्ट रेफर, बट अटेम्प्ट योरसेल्फ फर्स्ट. आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और उसके बाद मुझे और कितना उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, so any more question by students? Yeah, new students. Hello, sir. Praveen. हाँ. So can you share your book list or the books you referred if you remember any? I do most of them.
थोड़े से ही पढ़े थे मैंने, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स आई सजेस्ट यू शुड रीड 1 book 10 times, ठीक है. सो कॉमन ही होते हैं मोस्टली. आई रिमेम्बर रेफरिंग टू नोट्स, मोस्ट ऑफ द नोट्स फॉर इकोनॉमिक्स आई रेफर्ड श्रीराम आईएएस के इकोनॉमिक्स के नोट्स बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत फायदा हुआ उनसे. हिस्ट्री के लिए तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे, मॉडर्न इंडिया की बिपिन चंद्रा की. ज्योग्राफी के लिए ओनली एनसीईआरटी, गोची लियोंग, जीसी लियोंग फॉर इंटरनेशनल ज्योग्राफी. उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया. अब बिपिन चंद्रा का एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सम बुक आता है यार, नाम भूल गया, ठीक है. यस यस. वो एक बुक है, वो आप रेफर कीजिए, उसको मेंस के लिए बहुत फायदा करेगा. एंड ये तो हिस्ट्री है. एंशियंट एंड मॉडर्न का मैं सप्लीमेंट्री नोट्स पढ़ लेता था कोई भी. मैं उसको थोड़ा कम रेफर करता था, क्योंकि जब मैंने एनालाइज किए थे पीवाईक्यूज, अभी पूछा था ना किसी ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो मैं देखता था कि उसमें एंशियंट मिडिवल में कम क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं केवल उसकी एनसीईआरटी के समरी नोट्स पढ़ लेता था. मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरा रुझान ज्यादा था, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उस पीरियड में जब मैं पढ़ाई कर रहा था. तो आप लोग देख लीजिए कहाँ से ज्यादा आ रहा है, ठीक. दूसरा, ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटीज एंड जीसी लियोंग आर मोर देन सफिशिएंट. फिर भी अगर आपको लगता है तो कोई एक सप्लीमेंट्री नोट्स आप रेफर कीजिए साथ में, कोई भी कोचिंग क्लास के या कहीं के भी. और एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए. जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वो टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है, वहां से क्वेश्चंस उठाइए और वो सॉल्व करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक कितना अच्छे से समझा है. ये हो गया हिस्ट्री. ज्योग्राफी. पॉलिटी के लिए तो पीएम बख्शी जी का मेरे पास बुक था कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड लक्ष्मीकांत वाज गुड इनफ रेफर करने के लिए, वाज नाइस. इकोनॉमिक्स आई मेंशन श्रीराम आईएएस के नोट्स में पढ़ता था, एंड एनसीईआरटीज, दोज वेर वेरी हेल्पफुल. एनवायरमेंट के लिए देयर वर वन नोट्स वेरी प्रेवलेंट देन, शंकर आईएएस के. आई डोंट नो अभी मिलते हैं कि नहीं, वो पढ़ लीजिए. आर्ट एंड कल्चर के भी सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं, एनसीईआरटीज होती हैं, दोज आर वेरी मच सफिशिएंट. तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये मेरे 5 पांडव हुआ करते थे. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा मेरा असेसमेंट था. तो मैं इनको ज्यादा फोकस करता था. साइंस एंड टेक के लिए अगेन एनसीईआरटीज. एंड और कोई टॉपिक, करंट अफेयर्स में आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू. और मैं करंट अफेयर्स को बहुत अलग तरह से अप्रोच करता था, ऐसा मुझे लगता था. काफी लोग भी करते हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो. मैं न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं वो कट करता था, उस पर डेट और सोर्स लिख लेता था, एक्सप्रेस, और आज की डेट है सपोज 19 जून 2022, और उसमें भी हाईलाइट कर देता था जो इंपॉर्टेंट है. अगर बड़ा आर्टिकल है तो चिपका लेता था, अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो उसको स्क्रिबल कर लेता था. मेरे रजिस्टर में क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट चलता था उन इश्यूज का, तो वो मैं करता था. मैगजीन पढ़ता था, मैं क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ता था, और कोई सप्लीमेंट्री अच्छी मैगजीन लगी तो मैं वो भी सब्सक्राइब करके वो भी पढ़ लेता था, अगर टाइम परमिट करता है तो. तो वो करंट अफेयर्स हो गया. ऐसे के लिए हम लोग 15 महीने में 1 या 2 ऐसे लिख लेते थे, ठीक है. अभी 2 ऐसे पूछते हैं तो आई सजेस्ट कि अभी छोटा छोटा ऐसे हो जाता है फिर वो आपका, तो आप 15 दिन में 1 ऐसे लिखिए, 1 या 2 ऐसे लिखिए आपकी कन्वीनियंस से, ठीक. 1 हफ्ता आप टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, अगले हफ्ते ऐसे लिख लीजिए, ठीक. ऐसा अल्टरनेटली कर सकते हैं. तो और कोई अगर ऐसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है तो पूछ सकते हो आप, उसके लिए मैं याद करके बता सकता हूँ मैं क्या पढ़ता था. जी. Hello, sir. Yeah. So for economic subject, is it required to go through 4 to 5 years of economic survey and budget for developing good answer writing for economics? Only the current. Only the Only current. current. मतलब अभी जो अभी इकोनॉमिक सर्वे अभी आया होगा ना रिसेंट वाला, उसको पढ़ Yes. लीजिए पूरा अच्छी तरह से, ठीक है. और बजट के Okay. तो बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, वो देख लीजिए. बजट में कोई खास प्रावधान अगर हुआ है तो उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट है तो तुरंत जाके उसको ब्रश अप कर लेना है, ठीक है. उससे रिलेटेड पूछेंगे, कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो उससे पूछेंगे. इकोनॉमिक सर्वे बहुत बढ़िया चीज है, उसको रेफर कीजिए. उसमें काफी आपको फैक्ट्स मिलते हैं, वो फैक्ट्स आप मेंस के आंसर राइटिंग में डायरेक्टली कोट कर सकते हो ब्लाइंडली. गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कंप्लीटली रिलायबल, ठीक. इकोनॉमिक सर्वे एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से. उसके नोट्स वोट्स बनाते हो तो बनाइए, अगर नहीं बनाते हो तो वही हाईलाइट कर लीजिए, उसी पन्ने पे स्क्रिबल कीजिए, जो भी स्ट्रेटजी आपको सूटेड लगती है अपने लिए, ठीक. इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, गुड डॉक्यूमेंट. फॉर पॉलिटी रीड द कमिटीज आल्सो. सेंटर स्टेट रिलेशंस की बहुत सारी कमिटीज हैं, वो पढ़िए. पुलिस रिफॉर्म्स वाली कमिटीज हैं, उनके की डॉक्यूमेंट, की रिकमेंडेशंस पढ़ लीजिए. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आरसी की 10 रिपोर्ट्स हैं, पढ़िए सबकी.
ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जनरल स्टडीज में बहुत हेल्प कर देगा आपको, इवन ऐसे में एवरीथिंग, पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एआरसी रिपोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन रिपोर्ट्स, पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स, और कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं तो उसके बुलेट पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है। तो दोज आर वेरी हेल्पफुल। ओके सर, थँक यू. येस, चेतना, तुला एक प्रश्न होता, तू विचारू शकते. चेतना. हो सर, एक क्वेश्चन केला होता मी आता की या सगळ्या जर्नी मध्ये फोकस कसं ठेवायचं स्वतःला, म्हणजे सगळे जे काही घरातले प्रॉब्लेम्स, काही पर्सनल जे काही असेल ते सगळं मॅनेज करून. फार फार महत्वाचा प्रश्न आहे हा, कारण हा प्रश्न म्हणजे मॅक्सिमम किंवा सर्व ऍस्पिरंट्सलाच पडणार आहे की फोकस कसं ठेवायचं. जर्नी फार मोठी आहे, एक्झाम वर्षभर चालतं, प्रिपरेशन वर्ष 2 वर्ष चालतं, सहसा यश मिळायला 3 ते 4 वर्ष लागणं स्वाभाविक आहे, ठीक है। तर याच्यासाठी तुम्हाला थोडंसं आपली मनाची तयारी करावी लागेल। आपके मन को एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो स्ट्रेंथ आपको सेल्फ बिलीफ से ही आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन से आएगी। मल्टिपल एक्झाम्स द्यायचा एक फायदा हाही असतो की कुठल्याही आपले टार्गेट एक्झामच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या एक्झामची पोस्ट मिळाली तर कॉन्फिडन्स फार वाढतो। मेरा फर्स्ट लव हमेशा यूपीएससी सिविल सर्विस था, बट यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में जब मेरी पोस्ट आई तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप हो गया था। आई कुड सेंस इट, आई कुड फील इट कि आई एम इन सर्विस, ग्रुप ए में हूँ, इसलिए भी आई थिंक दैट गिव मी अ बूस्ट ड्यूरिंग कमांडो ट्रेनिंग ऑल्सो। तो मैं पढ़ने का ही जुटा पाता था और पढ़ लेता था ठीक ठाक, ठीक आहे। तर ते तुम्हाला थोडीशी मनाची तयारी करावी लागेल। घराचे प्रॉब्लेम सगळ्यांचे असतात। माझ्या केसमध्ये माझे वडील पण रिटायर झाले होते, मग मला नोकरी लागता लागता मध्ये 3 वर्षाचं 3.5 वर्षाचं अंतर आलं होतं, म्हणजे 2.5-3 वर्षाचं, ठीक है। तो काफी प्रॉब्लम्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक तरह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जाती है ना, यू वांट टू ओन अप एंड यू वांट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर, हम सबके साथ वो होता है एंड वी शुड एक पर्टिकुलर एज में वी शुड इंश्योर दैट वी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए मन की तयारी रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए, ऑलवेज मी स्वतःला रिमाइंड करून द्यायचो की मी हे का करतोय, फार महत्वाचं आहे की मी हे का करतोय, वाय। वाय जो असतो ना लाईफ मध्ये फार इम्पॉर्टंट आहे। कुठलीही गोष्ट का करायची किंवा नाही करायची, तो जो WHY वाय असतो तो वो आपको सही राह दिखाएगा। अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, आपके गोल्स क्लियर है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर उसमें, ठीक है। टफ डिसीजंस रहेंगे, टाइम्स टफ रहेंगे, बट ठीक है। मला वाटतं अगर ये इतना आसान होता तो फिर आई थिंक इतना कम म्हणजे कमी लोग क्लियर करू शकले नसते मग, ठीक है। हर कोई क्लियर कर लेता ना। तो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, उतना एफर्ट करिए आप। सोना भी तो तब के ही बनता है ना आखिर में, एंड में, तभी तो उसका मूल्य होता है। तो इसको भी वैसे ही लीजिए आप, ठीक है। वर्क हार्ड, नेवर शाय अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। आपका जो भी कोई ऐसे टॉपिक होते हैं पढ़ाई करते हुए, अभ्यास करताना काही असे टॉपिक्स असतात जे तुम्हाला फार डिसइंटरेस्टेड वाटतात, म्हणजे अजिबात वाचावंसं वाटत नाही, ठीक आहे। माझ्यासाठी पण असे काही टॉपिक्स होते, इकॉनॉमिक्स होता, स्पेशली इकॉनॉमिक्स इंटरनॅशनल रिलेशन मध्ये मला इनिशियली रस नाही यायचा, मैंने पकड़ के रगड़ दिया, फिर उसको बहुत दबा के पढ़ा मैंने, तो मला ते समजायला लागलं। मग मला जेव्हा ते समजायला लागलं तेव्हा मला कळालं की अरे हे तर फार इंटरेस्टिंग आहे, फार मजेशीर आहे। प्रत्येक विषय प्रिपरेशनचा फार मजेशीर आहे, वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। अभी मानसून आ रहा है ना, आप में से जितने भी एनआईटी पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा मानसून क्यों लेट आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, विंड सर्कुलेशन का क्या फंडा है, वो साउथ वेस्ट मानसून विंड जब मुंबई को हिट करता है तो क्या होता है, ठीक है, वो कैसे बाइफरकेट होता है, ठीक है। दीज आर ऑल, तो आप उसको स्टार्ट रिलेटिंग दीज थिंग्स। न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है आपको तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। समटाइम्स यू स्टार्ट गेसिंग ऑल्सो, और वो आपको करना है। यू नीड टू हैव दैट फोरसाइट एज अ ब्यूरोक्रेट, यू नीड टू हैव दैट फोरसाइट। तभी तो आप अच्छे तरह से अपने पॉलिटिकल हेड्स को या अपने डिपार्टमेंट को या अपनी टीम को लीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस से आएंगी, अच्छी पढ़ाई से आएगी। तो डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, हैव दैट सेल्फ बिलीफ, ठीक। चेतना। या राइटली सेड। और मैं हमेशा बताते रहता हूँ बच्चों को कि भाई जीवन ही पूरा संघर्ष है, राइट। अब ये जैसे जिनको रियलाइज होगी ये बात कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष का आनंद लेना चाहिए, तो वो बच्चे हिट कर लेते हैं एग्जाम को। लेकिन जो इस संघर्ष को बोरिंग मानते हैं या फिर पढ़ाई को बोरिंग मानते हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन होना मुश्किल होता है ना। लाइक यूपीएससी और
एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और लाइफ का एक छोटा सा सर्कल है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। तो हम ये बातें हमेशा बताते रहते हैं। अभी स्वच्छंद जी ने भी ये बात बताई कि आप लोगों ने पढ़ाई भी एंजॉय करनी चाहिए, जो डिफिकल्ट है उसे तो पहले फर्स्ट करना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और मजा लेना चाहिए। एंड प्रॉब्लम सभी को आते हैं, राइट, प्रॉब्लम सभी को आते हैं, तो प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। या सो थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई थिंक मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट हैव बीन कवर्ड, है ना। काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज का सेशन रहा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नाइसली आपने इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर किए, आपके जो भी स्ट्रेटेजी थी वो शेयर की है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ संबोधि आप जुड़े। अभी मैं संबोधि करियर में एकेडमी के माध्यम से आपका धन्यवाद देता हूँ, और विशेष धन्यवाद देने के लिए मेरी स्टूडेंट है रिनी, आर यू देयर? Yes, sir. Yeah, so Rini Rosario, she is a student of Sambodhi IS Academy, and she has been, like many of the students, they have been preparing for this UPSC and MPSC state services examination. And I am sure that my students, those who are preparing on at Sambodhi, they will secure their career sooner or later. काफी अच्छे बच्चे हैं मेरे पास, बहुत ही, और मैं इनका हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और एथिकल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करने का पूरा कोशिश करता हूँ। और इसी कड़ी का ये भाग है, जैसे हम ऑफिसर्स लोगों को, और थोड़ा सा कोरोना ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए, लेकिन कोरोना की एक देन ये भी है ऑनलाइन सेशंस। तो ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से, जैसे आप अभी, आई थिंक यू आर सिटिंग इन अ नीमच ऑफिस, राइट? आप नीमच के ऑफिस में आप अभी बैठे हो, और आप नीमच से, आप मध्य प्रदेश से आप इंटरेक्शन कर रहे हो। तो ये पैंडेमिक का एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का वरदान भी है, और इसी के माध्यम से काफी सारे ऑफिसर्स ने ऑल इंडिया लेवल से, काफी सारे IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स ने, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो सर्विसेज में है, मेरे काफी सीनियर्स, बैचमेट्स, तो मेनी पीपल दे इंटरेक्टेड, मोटिवेटेड स्टूडेंट, ओके। और काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने सेशंस दिया था। तो ये स्टूडेंट्स काफी लकी है वैसे, बिकॉज इतनी अच्छी फैसिलिटी इंटरेक्शन करने की। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे मैंने मेरी शुरुआत की थी, मैं इनको हमेशा बताते रहता हूँ कि भाई मैं जब नागपुर से लाइक 2000 पास आउट हुआ था BE में, इंजीनियरिंग में, तो हमारे पास उस समय की सुविधा नहीं थी, और आपके समय भी लाइक ऑनलाइन कोचिंग या ये सारे माध्यम नहीं थे, राइट? 2000 व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन। जय वाघमारे जो मेरा स्टूडेंट है, ही ज्वाइन माय दिस थाने ब्रांच में, और उसने यही से मेरा गाइडेंस वगैरह लिया था, जो आपके साथ ही बाद में सिलेक्ट हुआ। तो उस समय भी ये ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑनलाइन facility, students should take this opportunity to prepare themselves in an extraordinary manner, okay, with a practical approach, and to get success through this examination. So thank you very much, Swachhand Chavan ji, for this nice interaction. Rini, please, now over to you. Please express your vote of thanks for this session. Yeah, Rini Rosario. On behalf of Sambodhi Career Academy, first of all, I would like to extend my most sincere thanks to Swachhand sir for taking time out of his schedule for us and guiding us and clearing all our doubts. This session was truly insightful and has helped enlighten our minds and have shown us a new approach towards cracking the UPSC Civil Services exam. Joining Sambodhi Career Academy has helped me learn the best of knowledge and values that are crucial for our growth and development as future bureaucrats. Mangesh sir especially constantly motivates his students and goes out of his way to provide us with very useful guidance from various officers. Guidance lectures such as today from officers has played a very important role in shaping our journey for preparation. So thank you, Mangesh sir, for organizing this lecture for us today. And once again, thank you, Swachhand Chavan sir, for inspiring us with your words. Thank you. Thank you, Yeah, Rini. thanks, sir. Thank you for having me. Thank you, everyone. Yeah. So I'll take your leave, Mangesh ji.
Thank you for having me, and all the best to all your students. We'll see you in service soon. Thank you. Jai Hind. Yeah, thank you, and looking forward for your association with Sambodhi in the near future also. Yeah, my pleasure. Yeah, thank you very much. Have a nice day too. Have a nice day. Yeah. Yes, students, our next guest officer पंकज मोरे सर भी यहाँ पे अभी ज्वाइन हुए हैं इस सेशन में। अभी आपने और हमने बहुत ही पंक्चुअली इस सेशन को रखा है, तो जो टाइम दिया था मैंने 10 to मतलब मॉर्निंग 10 से 11:30 का स्वच्छंद चौहान सर का, और हमारे दूसरे ऑफिसर जो काफी सालों से मतलब सिंस द इंसेप्शन ऑफ संबोधि पंकज मोरे सर जो ठाणे ब्रांच में कालाचुकी ब्रांच में भी बच्चों को गाइडेंस करने के लिए आते थे, सो वो अभी जुड़े हैं। तो फर्स्ट सेशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके हम सेकंड सेशन अभी पंकज मोरे सर का स्टार्ट करेंगे। ओके, या सब लोग जुड़ के मतलब बने रहिएगा। थैंक यू।